Greetings, students. You are most welcomed in my English class. Today, we will study the first lesson, The Portrait of Lady, written by Khushwant Singh. At first, you can check. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. These are the expressions. We'll study about these expressions in the text. I'm going to start this lesson by my grandmother. Okay, students, let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. This is the first expression. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified of her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Students, अब मैं पूरे जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ तक का मैं आपको हिंदी में इसका विवरण बताता हूँ। मेरी दादी माँ बाकी सब की दादी माँओं के जैसी एक बूढ़ी औरत थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी जो पिछले 20 साल से, जब से मैं उनको जानता था तभी से उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि कभी वह युवा और सुंदर हुआ करती थी। उसका एक पति भी था, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट जो ड्राइंग रूम में लटका हुआ था, उन्होंने बड़ी सी पगड़ी और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के बहुत सारे भाग को ढाँप रही थी और ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो वर्षों उनकी उम्र रही होगी। उनको देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि इनकी पत्नी व बच्चे होंगे। उनको देखने पर लग रहा था कि इनके बहुत सारे पोते व पोतियाँ हैं। जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है सुंदर और युवा होने की, यह विचार भी बड़ा ही आक्रामक था, अर्थात सीधे सीधे हजम होने वाला नहीं था। जो कहानियाँ वो अक्सर सुनाया करती थी और उन गेम्स के बारे में बताया करती थी कि जब वे छोटी बच्ची थी उस समय वो खेला करती थी, ये बात भी हमें बकवास लगती थी और इस पर हम इतना फोकस नहीं कर पाते थे। हम उनकी इस बातों को कहानियों की भांति लेते थे, जैसे पीर और पैगंबर की कहानियाँ होती थी ना, जैसे वो सुनाया करते थे हमें, हम उनकी भांति ही इनको भी लेते थे। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Students, जहाँ तक मेरी दादी के बारे में बात है, यहाँ पर वर्णन करता बता रहा है खुशवंत सिंह, खुद ही यहाँ पर वर्णन करता है कि वो छोटे कद की, मोटी और थोड़ा सा उनकी कमर झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी
और यहाँ से वहाँ तक दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। नहीं, ये बात तो निश्चित थी कि हम हमारी दादी को जैसा हमने देखा था हम वैसा ही उनको जानते थे, अर्थात कभी वो युवा व सुंदर नहीं हुआ करती थी। सो टेरिबली ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो बहुत बूढ़ी थी, उससे आगे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। यहाँ इसी स्टेज पर वो पिछले 20 वर्ष से थी और वे कभी भी सुंदर तो नहीं हो सकती थी, लेकिन वे हमेशा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट, मैं आपको बात बता दूँ कि व्यक्ति गुण और चेहरे दोनों से सुंदर होता है। चेहरे से तो इतना सुंदर नहीं थी, लेकिन गुणों से वो बहुत बहुत सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other tallying the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in audible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and content. स्टूडेंट्स, अब इसके हिंदी में मैं आपको विवरण बता रहा हूँ। इस सबसे पहले ये बताया गया था कि मेरी दादी माँ वैसे ही थी जैसा हम उनको जानते थे, सुंदर और कभी युवा थी इस बात का हमें पता नहीं था। बहुत बूढ़ी थी और लगातार इसी स्टेज पर पिछले 20 वर्ष से वो स्थायी थी, या ऐसे ही दिखाई दे रही थी। वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन गुणों से वो बहुत सुंदर थी। उनके गुण बहुत सुंदर थे, कह सकते हैं। पूरा दिन वो आंगन में इधर से उधर लुढ़कती हुई चलती रहती थी और क्या करती थी, जैसे कि उनकी कमर झुकी हुई थी, उसको बैलेंस करने के लिए अपना एक हाथ अपनी पीठ पर रखती थी और दूसरे हाथ में मनकों की माला का जाप करती रहती थी। उनके सफ़ेद बाल उनके पीले और फीके चेहरे पर असुलझे, बिना सुलझे कह सकते हैं, लटक रहे थे और वो लगातार एक प्रेयर कर रही थी जिसको हम पूर्णतः नहीं सुन सकते थे, अर्थात उनके होठ हिलते हुए केवल दिखाई दे रहे थे। हाँ, वे सुंदर थी और ऐसी सुंदर थी जैसे कि बर्फ़ या सर्दी के समय में पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है और चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद हमें दिखाई देता है। और इस सफ़ेद लैंडस्केप में ऐसा लगता था जैसे कि संतुष्टि और शांति इसमें श्वास ले रही है, अर्थात ऐसा चेहरा था उनका, बिल्कुल शांत और संतुष्ट चेहरा उनका था। और इसकी उपमा भी की गई है जैसे कि माउंटेन रिजेज होती, उनके ऊपर बर्फ़ गिर जाती शरद ऋतु में, जैसा दृश्य वहाँ का होता था मनोरम और सुंदर, वैसा ही मेरी दादी का भी था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me.
After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर इसका हिंदी में विवरण आपको बता रहा हूँ। मेरी दादी माँ और मैं बहुत घने मित्र थे। मेरे पिताजी और माताजी जब शहर रहने के लिए चले गए थे तो मुझे मेरी दादी के पास गांव में छोड़ गए थे। मेरी दादी माँ मुझे सुबह सुबह जगाती, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती और एक बड़े ही नीरस स्वर में सुबह सुबह जब मुझे नहला रही होती, स्कूल के लिए तैयार कर रही होती, तो एक प्रेयर गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, इस उम्मीद से कि मैं उसको सुन रहा हूँ और उसको याद कर रहा हूँ। मैं उनको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, लेकिन कभी भी उसको याद करने का कभी भी जोखिम नहीं उठाया, कभी भी चिंता नहीं की। उसके बाद वह मेरी तख्ती जो पहले से ही मुल्तानी होती है उससे पोत दी गई होती थी। उसके बाद एक मिट्टी की स्याही की दवात और कलम मुझे बांधकर मुझे पकड़ा देती। उसके बाद हम एक बासी रोटी के ऊपर शक्कर व घी डालकर नाश्ता करते और उसके बाद हम स्कूल के लिए चल पड़ते। बहुत सारी चपातियाँ दादी माँ अपने साथ लेके चलती ताकि वह गांव के कुत्तों को खिला सके। Next, students, I'm going to read this one from my grandmother. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Students, यहाँ पर जो इसका विवरण बनता है वो ये है कि मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के साथ ही मंदिर भी था। मंदिर में वहाँ पर पुजारी हमें कुछ अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर हमें सिखाता और उसके बाद सभी बच्चे बरामदे में एक दूसरे के आमने सामने लाइनों में बैठ जाते और वहाँ पर हम समूह में वो सब अल्फ़ाबेट गाते। मेरी दादी माँ अंदर मंदिर में बैठ जाती और वहाँ पर वो ग्रंथों का पाठ करती, ऐसा हम कह सकते हैं, ग्रंथों का पाठ करती। और जब हम वापस वहाँ से चल पड़ते तो गांव के कुत्ते हमें मंदिर की ये कह सकते सीढ़ियों पर या उसके दरवाजे पर मिलते और वे हमारा घर तक पीछा करते, आपस में गुर्राते हुए एक दूसरे के ऊपर झपट करते हुए। किसके लिए? जो चपातियाँ हम उनको फेंक रहे थे उनके लिए, और वो घर तक हमारा पीछा करते। Last, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took the feeding sparrows in the courtyard of our city house. जब मेरे माता पिता शहर में पूरी तरह से सेट हो गए तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। वह हमारी मित्रता के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था, टिवर मोड़ कह सकते हैं जिसको। यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे, लेकिन मेरी दादी माँ मुझे कभी स्कूल छोड़ने के लिए नहीं गई। वहाँ मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था जहाँ पर एक बस मुझे लेने के लिए आती थी। वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने शहर के घर में जो आंगन था वहाँ पर चिड़िया और बाकी पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। As the year rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me.
स्टूडेंट्स यहाँ इसका विवरण कैसे रहेगा। इस प्रकार से वर्ष बीतते गए और हम एक दूसरे से कम ही हमारी बातें हुई। कुछ समय तक तो दादी माँ मुझे सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती और जब मैं वापस घर आता तो ये पूछती कि स्कूल में टीचर्स ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words, a little thing of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lived associations. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब दादी माँ मुझसे पूछती स्कूल में क्या पढ़ाया गया है तो मैं उनको कुछ अंग्रेजी के शब्द, पश्चिमी विज्ञान और वहाँ की शिक्षा के बारे में बताता, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पृथ्वी गोल है। ये सब उसको क्या कर देता, दुखी कर देता। वो मेरे लेसन को पूरा करने में सहायता नहीं कर सकती थी। उनको जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके ऊपर विश्वास नहीं था और वे बड़ी दुखी थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भगवान व ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। एक दिन जब मैंने ये बताया कि आज हमें लेसन्स दिए गए हैं वो म्यूज़िक के हैं, तो वो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उनके अनुसार जो संगीत है वो भद्र पुरुषों का काम नहीं है, निम्न स्तर के लोग उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि हार्लोट्स और बेगर्स, जैसे भिखारियों और वेश्याओं का काम होता है, लेकिन अच्छे कुल के व्यक्तियों का काम नहीं होता। उनका डिसअप्रूवल, उनका जो शांति थी वो चुप रही, वही उनका डिसअप्रूवल था। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कम ही बातें की, अर्थात आपस में हमारी बातें बहुत कम हुई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.